Okay. So hello everyone. I am Aradhika Sabarwal, and today we're going to be doing a session on managing aggression in teenagers. So before we begin, I'd like to introduce myself. So as I said, I'm Aradhika Sabarwal. I'm a counseling psychologist and an RCI trainee rehabilitation psychologist. I have 1+ years of experience, and with that, I generally focus on issues related to stress, anxiety, trauma, and grief, relationship issues, marital counseling, adjustment and behavioral problems, and anything related to emotional concerns as well. I also work towards inner child healing. Today I'm here with Parent Eva because I deeply resonate with their mission, where they want to bring together parents and make the parenting journey a little easier for new and old parents all together. I think what they're trying to do over here is something that is really interesting. How they want to build up a community of parents where they can, share whatever they are experiencing and also learn from others' experiences as well. No matter whether you have a 20-year-old or a 30-year-old, or you try and you're planning to become parents. All of those things don't matter at Parent Eva. Everybody can, just come together, share their experiences, learn from others, and not just that, the fact that they are making it feasible for parents to get in touch with resource persons such as counselors and psychologists such as myself, who can help not just parents but also children deal with any challenges that they may be facing, or any issues that they just want a little more help with. And that's exactly what brings us to today's session on managing aggression in teenagers. But before we get into it, I would just like you to introduce yourself, maybe if you can, a little bit, and then we can begin. Hi, I'm Henna, and I have a teenager kid who is 15 years old. He's a boy, very aggressive, and mostly the only problem that we have is that he wants to copy his friends. And I say, I don't like your friends. And he's after me like, you only don't like my friends. You just want what you want, I should do. And for them, parents are like, abhi tak, they are the most annoying ones. They don't want to sit with us. They only want jab tak hamari baatein maan rahe ho, you are very good. Whenever you say something, you are not that good. So basically, I am in a very mixology type of a thing. That how do I manage? Whenever is happy, he wants to share everything with me. But when I want to share and he's not in the mood, he doesn't want. He's just sorry. Just go out of my room. Stop yelling at me. Something like this. So I'm a confused parent right now. Thank you so much for sharing, Hannah. That sounds like a very common problem that people face, parents face with their children, especially teenagers. So these are the things that we are going to try to, get into in today's session, and maybe you can get some of the answers with this. And if not, we can maybe, focus in detail, what are the issues, and then come up with particular solutions. Uh, okay, so shall I just begin with the session? Okay, just a second. Yeah. So, Hannah, I would just like to know that what do you do when your child gets angry? Just, each those sentence, anything that you can come up with. What do you generally do? Initially, I try to pacify myself. It is okay. Still, एक बार, दो बार, तीन बार. I also have that. And at the end of the day, I also get burst out, and there are times that yell at him, and then he's like, "Stop yelling at me. Go out of my room." So that's what when you really feel hurt, furiated. At times, you feel like crying. You also outburst your emotion. That's what happens. That sounds extremely difficult for you, because when you are in a situation, obviously you can't, this hurts when, children say things like that to their own parents, nobody else, just your own parents. As parents, definitely, because you'll always love them no matter what. But when they say things like these, they're bound to hurt. So today I'm going to talk about these things specifically. And so before we get into how to, manage these things, first, to manage anything, it becomes important to understand why something is happening, right? So first we'll try to understand why do teenagers actually show aggression, and why is there a sudden spurge of aggression during teenager adolescence years जिनको हम कहते हैं. So as you also mentioned just now that all of a sudden mood खराब होगा तो won't listen. So ये हमारे जो points हैं यहाँ पे, they're going to talk about these things only.
सो पहला रीजन इज बॉडीली चेंजेस. हम सबको पता है व्हेन वी एंटर टीनेज इयर्स तो हमारी बॉडी में काफी रैपिड चेंजेस होने लगते हैं. वी आर ग्रोइंग रैपिडली. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन इनसाइड आवर बॉडी एंड आउटसाइड. सम विजिबल चेंजेस, सम नॉन विजिबल चेंजेस. सो इनकी वजह से क्या होता है, there's a lot of confusion among teenagers. They don't know what is happening because these things are happening, but actually nobody wants to talk about it. As parents also, we sometimes feel very uncomfortable talking about these things with our children, explaining to them why these things are happening, why they are important. So that conversation becomes very awkward, not just for parents but for children as well. कई बार ऐसा होता है बच्चे आके बात ही नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से, स्पेशली दी ऑपोजिट जेंडर पेरेंट. That they are not comfortable उनसे आके शेयर करना कि this is what is happening, is this okay, is this normal. बच्चे वो बातें नहीं कर पाते हैं. And when that happens उनको काफी ज्यादा confusion रहती है. एंड वो कंफ्यूजन बिकॉज इस एज में क्या होता है, उनके इमोशंस बहुत प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं होते हैं. उनको अच्छे से नहीं पता अपने इमोशन से कैसे डील करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है. तो मोर ऑफन देन नॉट उनकी सारी कंफ्यूजन रिजल्ट्स इनटू अग्रेशन. And by aggression, I don't only mean गुस्सा करना या angry होना. By aggression, I mean frustration, agitation, irritation, and violence as well. बच्चे कई बार ऐसे होगा कि आप उनसे कोई बात करोगे वो चिढ़ जाएंगे आपसे विदाउट एनी रीजन. वो बस चिढ़ जाएंगे, छोटी सी बात होगी एंड दे विल मेक अ बिग फस आउट ऑफ इट. These things are happening because उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं they're out of their control and वो काफी confused state में है कि क्या है क्यों है. Now, the second point we have over here are hormonal changes. Well, in fact, hormonal changes की वजह से bodily changes आते हैं. Now, these hormonal changes are responsible for a lot of things, not just हमारी bodily changes, but for our emotional changes as well. हम सबको पता है कि लड़कों की बॉडी में ड्यूरिंग टीनेज इयर्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है. लड़कियों की बॉडी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. बट इट्स नॉट कॉमन नॉलेज कि लड़कियों की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है ड्यूरिंग टीनेज इयर्स. एंड टेस्टोस्टेरोन इज डायरेक्टली लिंक टू अग्रेशन. जैसे जैसे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा अग्रेसिव टेंडेंसीज भी बढ़ेंगी. वेल इन फैक्ट प्रोजेस्टेरोन भी एसोसिएटेड है अग्रेसिव टेंडेंसीज से, बट अ लिटिल लेस. तो क्या होता है इस एज में आप जनरली नोटिस करेंगे बॉयज, एज हिना मेंशन शी हैज अ बॉय, तो लड़कों में वायलेंट बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. यू वुड ऑफन फाइंड देम स्कूल की कोई लड़ाई होगी उसमें वो एक्चुअली झुंड बना के लड़ने लग जाएंगे. दे वुड हिट ईच अदर. बहुत कॉमन होता है ये वायलेंट बिहेवियर. एक्सेसिव अग्रेसिवनेस आ जाना, घर पे भी छोटी छोटी बात पे वो चिड़ बार बार करते रहना. दिस इज वेरी कॉमन. But the important thing to remember over here is this is mostly not in their control. ज्यादातर when this is happening because of internal changes and उनके अपने हाथ में नहीं है. It's just a knee jerk reaction sort of. And in fact, when given time to think about it, उनको भी realize होता है हमने गलत बोल दिया, थोड़ा ज्यादा बोल दिया. And then you would notice after some time वो आएंगे आपके आसपास घूमेंगे तो pacify things की normally कर लेते हैं पेरेंट्स के साथ. उनको सॉरी भी ना बोलना पड़े because obviously इस एज में वो ईगो भी रहता है बच्चों में. तो हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हमारी गलती थी, बट वी वुड लाइक टू हवर अराउंड आवर पेरेंट्स की हाँ हाँ मम्मी बात करो कि मम्मी खुद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते. सो थिंग्स लाइक दैट. सो दीज आर बोथ इंटरनल चेंजेस जो बॉडी में हो रही हैं विच आर नेचुरल. नेक्स्ट वी हैव अ डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस. ये टीनेज ईयर्स में बच्चों में बहुत ज्यादा होगा. वो अकेले रहना पसंद करेंगे. दे वुड वांट टू डू थिंग्स देयर ओन वे. दे वुड नॉट वांट अदर्स टू इंटरफेयर, स्पेशली देयर पेरेंट्स. बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ना एक फीलिंग आ जाती है बच्चों के अंदर मुझे सब पता है, आई एम बिकमिंग इंडिपेंडेंट. बिकॉज नाउ दे ऑब्वियसली नीड देयर पेरेंट्स अ लिटिल लेस एज कम्पेयर टू बिफोर. तो अब उनको कम जरूरत है अपने पेरेंट्स की. सो अब जब कम जरूरत पड़ रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है आई कैन हैंडल एवरीथिंग ऑन माई ओन. एंड वो डिजायर जब वो बढ़ जाता है, पेरेंट्स ऑब्वियसली वांट व्हाट्स बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, राइट. तो वो हमेशा बच्चों को रोकेंगे कोई गलत काम करने से या समथिंग व्हिच दे डोंट फील इज राइट. लाइक एज एना मेंशन, लाइक इफ योर चाइल्ड हैज फ्रेंड्स दैट यू थिंक आर नॉट अच्छी संगति नहीं है उनके लिए, तो यू वुड मेंशन इट टू देम. एंड देन दे वुड बी लाइक आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, माय फ्रेंड्स माय लाइफ, आई एम ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड क्या करना है, डोंट मेक माय डिसीजंस फॉर मी. ऐसी चीजें बच्चे बहुत कॉमनली बोल देते हैं. दिस इज रिजल्टिंग फ्रॉम देयर डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट. जब हम कोई चीज चाहते हैं और वो नहीं होती है उससे फ्रस्ट्रेशन आती है. तो बच्चे एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में चले जाते हैं ड्यूरिंग दीज इयर्स, जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये तो इशू है बहुत ज्यादा. एंड फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है. बिकॉज फ्रस्ट्रेशन जहाँ होगी वहां अग्रेशन होगा ही होगा, नथिंग एल्स. एंड लास्टली वी हैव ट्रिगर्स.
नाउ इवन जो मैंने पहले 3 चीजें मेंशन की, दे आर आल्सो ट्रिगरिंग फॉर अग्रेशन. बट बाय ट्रिगर्स ओवर हियर मेरा मतलब है कॉमन ट्रिगर्स जो सिचुएशनल होते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे हमारा अग्रेसिव बिहेवियर बढ़ जाता है. So before we get into, I will be talking about triggers and everything in detail. But before we get into that, there's one thing that I would like to mention over here is काफी सारे पेरेंट्स को ये फीलिंग आ जाती है because my kid is not behaving nicely with me. That means I am doing something wrong. I am the one doing something, which is not true at all. The thing is, ये एक normal stage है life की that every child goes through. I went through it and I'm pretty sure all of you went through it. It's just that कि हमारे parents ने उसको handle कर लिया उस time पे. But now times are changing. Technology बहुत advance हो गई है. The dynamics between parents and their children are changing. पहले हम अपने parents से डरते थे. अब वो डर खत्म हो गया है. It's more about हम एक friendly conversation हमारे parents भी रखना चाहते हैं हमारे साथ. बट ऑफन टाइम्स बच्चे वो फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन को फ्रेंडली नहीं लेते हैं, उस रिलेशनशिप को वो एक्सट्रीमली लेना शुरू कर देते हैं. दे थिंक वी कैन वॉक ओवर आवर पेरेंट्स. बट दैट इज कम्प्लीटली ऑन द चाइल्ड, नेवर ऑन द पेरेंट्स, बिकॉज हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं. So it's important to always remember, no matter what your child is doing, they're still children and you are doing your best. That's it. You are not bad parents just because आपका बच्चा aggressive है, या just because आपका बच्चा screen time कम नहीं कर रहा है, या just because he's violent or using abusive languages. Obviously we need to deal with those things effectively, but इसका ये मतलब नहीं है you are failing or lacking behind as a parent. So, okay, so now let's just get into some common triggers जो आजकल बच्चे बहुत commonly face कर रहे हैं. And honestly अगर हम इन चीजों से deal कर लें तो एक्चुअली अग्रेसिव बिहेवियर हम नोटिस करेंगे 50% कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो फर्स्ट वी हैव एकेडमिक प्रेशर. एकेडमिक प्रेशर आजकल बच्चों पे बहुत ज्यादा है. Constantly, I would hear my mother also saying this, and I'm pretty sure everybody constantly says this. The competition बहुत बढ़ गया है आजकल. It's not the same as when we were young. जब हम स्कूल में थे, things used to be so easy. आपको पढ़ाई पे फोकस करना होता था, get good marks and get done with it. But now it's not enough. Now you cannot just be good, you need to be best out of the best. So आजकल डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं, पढ़ाई का प्रेशर, एंड इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक्स. आजकल बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना होता है. दे हैव टू बी गुड एट स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड देन गेटिंग इनटू कॉलेजेस. वो प्रेशर ना बहुत यंग एज से बच्चों पे होता है, especially when they get into 8th class में आना शुरू होते हैं. that pressure starts building up. subjects difficult हो रहे हैं, and all the times parents भी नहीं help कर पाते हैं उन subjects में, because my mother wasn't able to help me जब मेरी maths complicated हो गई या science complicated हो गई. and when I teach my younger sister, she is in 5th standard right now, मुझे already दिख रहा है she's studying robotics, and those things हमने नहीं पढ़ी हैं. So as parents or as elder siblings, ये चीजें ना बहुत हमारे लिए भी complicated होती है और बच्चों के लिए भी, because they feel alone ऐसी situations में. Now what do we do ऐसी situations में? constant जब कंपैरिजन हो रहा होता है, वर्कलोड इतना होता है, कॉन्स्टेंटली एग्जाम्स पे एग्जाम्स हो रहे हैं, कई बार बच्चों को अनइंटेंशनली भी पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशराइज कर देते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, पासिंग इज नॉट इनफ, तुमसे अच्छे सबके कैसे आ गए, एवरीबडी गॉट 90 आउट ऑफ 100 या 85 आउट ऑफ 100, व्हाई डिड यू गेट अ 70 आउट ऑफ 100. तो ऐसी चीजें पेरेंट्स इसीलिए बोलेंगे ताकि वो अपने बच्चे का अच्छा चाहें कि द चाइल्ड सक्सीड्स. बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज एक अनसेट प्रेशर बिल्ड हो रहा है बच्चे के ऊपर, एंड जब वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, बच्चा अचानक से बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस आ जाता है ऑटोमेटिकली. अगेन कई बार होता है पेरेंट्स नहीं डाल रहे हैं, बट बच्चे अपने ऊपर खुद ही वो प्रेशर डाल लेते हैं दैट आई हैव टू सक्सीड, आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड. वो अपने आप को अपने फ्रेंड्स से कंपेयर करने लगते हैं दैट ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स गॉट लाइक एटलीस्ट 80s इन देयर मैथ्स एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100, व्हाई डिड आई गेट ओनली अ 70 और अ 65 और समथिंग लाइक दैट. वैसी चीजें बहुत कॉमन है विद चिल्ड्रन, स्पेशली 8 से लेकर जो 11th 12th तक की क्लास रेंज होती है. तो इस सब की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, एंड एज आई मेंशन उनसे अपने इमोशंस अच्छे से रेगुलेट नहीं होते हैं. दे अंडर सो मच प्रेशर. वो बाहर कैसे आता है निकल के? इन फॉर्म ऑफ अग्रेशन. एंड मोस्टली कहाँ आता है? विद आवर पेरेंट्स ओनली, बिकॉज बाहर तो कर नहीं सकते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर सारा गुस्सा आके निकाल देते हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन सीधा पेरेंट्स के ऊपर डंप कर देते हैं. नेक्स्ट वी हैव फियर, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रेंडशिप्स. अगेन इस स्टेज में आके वी वांट टू मेक आवर ओन सेपरेट आइडेंटिटी, राइट? तो क्या होता है कि हम अपनी फैमिली से अलग अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टेज में, बिकॉज वी वांट टू बी नोन नॉट जस्ट एज माय पेरेंट्स चाइल्ड, बट ऑल्सो मेरी अपनी
सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, विच आई बी टॉकिंग अबाउट. बट इससे क्या होता है कि फ्रेंड ग्रुप्स में वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि कई बार देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर ऑन देम कि ऐसे रहना है, ऐसे नहीं करना है, सारे फ्रेंड्स एक चीज कर रहे हैं, व्हाई शुड आई नॉट डू दैट, सब कुछ वैसे होना. देन ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन है. कई बच्चे बुलिंग भी करते हैं इस एज में, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो कि ज्यादातर बच्चे जो बुलिंग करते हैं आर दोज चिल्ड्रन जिनका अपना सेल्फ एस्टीम इज सो लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि उनको एक्चुअली ना दूसरों को बुली करना पड़ता है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि तुम दबोगे तो दुनिया दबाएगी. दैट्स वाई वो ज्यादा ऊपर ऊपर चढ़ के उन बच्चों को बुली करते हैं जो आगे से कुछ कहते नहीं है. तो उसकी वजह से दे कैन गेट बुलीड एंड टीनेजर्स कैन बी ब्रूटल. वो लिमिट्स नहीं देखते हैं कई बार, एंड उससे क्या होता है, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट टू फील लोनली, उनकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, दे गेट आइसोलेटेड फ्रॉम देयर पीयर ग्रुप एज वेल. तो उस सब का फ्रस्ट्रेशन, सारी कंफ्यूजन, ऑल ऑफ दोस फीलिंग्स ऑफ निग्लेक्ट फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, वो सारा अगेन अग्रेशन में डेवलप हो जाता है. एंड there's a very interesting thing over here, that is newly developed romantic feelings. इस एज में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं टूवर्ड्स देयर पियर्स. बट दिस इज समथिंग दैट इज स्पेशली इन द इंडियन सोसाइटी हम बहुत कॉमनली इस बारे में बात नहीं करते हैं. स्पेशली बच्चों से इस बारे में बात करना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है फॉर पेरेंट्स एज वेल. अब ऐसी सिचुएशन में बच्चे भी कई बार अनकंफर्टेबल फील करते हैं पेरेंट्स से बात करने में, और कई बार जब वो कर भी दे तो व्हाट हैपेंस इज पेरेंट्स डांट देते हैं, उनको कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो, अभी तुम्हारी ये उम्र नहीं है, यू शुड नॉट डू दीज थिंग्स, यू गो एंड फोकस ऑन योर स्टडीज. तो उनको एक निग्लेक्टेड फील होने लगता है सबसे. Sometimes what also happens on the other hand is they don't have any such feelings, but उनके peer group में बाकी लोगों को feeling है and they don't want to be left out. They just say कि हाँ हाँ मुझे भी है, ताकि उनको वो ऐसे ना लगे कि उनका मजाक ना बने अपने ग्रुप में कि तुम तो अभी भी छोटे हो, तुम तो बच्चे हो, दीज थिंग्स. तो इस सब की वजह से भी देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल गोइंग साइड बाय साइड. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स. आई थिंक ये मैंने काफी मेंशन कर दिया है ऑलरेडी कि उनको अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए. दे वांट टू स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस एट ऑल टाइम्स कि मम्मा मेरे को आता है आप मत करो, मेरे को आता है मुझे मत सिखाओ. दीज आर वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजीज दैट दे यूज. एंड इसकी वजह से क्या होता है, पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट, विच इज वेरी ऑब्वियस कि आपका बच्चा इफ दे सेइंग थिंग्स लाइक दैट दे हर्ट ऑब्वियसली. इफ अ फ्रेंड कम्स अप टू यू एंड सेज दीज थिंग्स वो भी हर्ट करेगा, एंड लेट अलोन दिस इज योर ओन चाइल्ड. तो ये चीजें बहुत ज्यादा वो, क्योंकि और ये चीजें एक्चुअली इसलिए होती है बिकॉज दे आर themselves struggling with these things and they don't know how to deal with it, so they just dump it on the easiest person they can, and that is they know that they're parents, because no matter how much they say, how much they dump on them, parents will always be with them, right? Next we have family. Now family हर इंसान की लाइफ का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है. फैमिली की वजह से भी कई बार बच्चे उनका अग्रेशन ट्रिगर हो सकता है, या दे शो बिहेवियर लाइक दैट. अब वो कैसे होता है, वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हर फैमिली के अपने रूल्स, रेगुलेशंस एंड ट्रेडिशंस होते हैं, राइट? तो बच्चे कई बार उस चीज से रिलेट नहीं करते हैं. एंड देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट कंपैरिजन कि मेरे फ्रेंड्स को तो ये अलाउड है, व्हाई डोंट यू अलाउ दिस टू मी. मेरे फ्रेंड्स को अलाउड है रात को 8 बजे तक बाहर रहना, व्हाई डू यू वांट मी होम बाय 7. ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे ना, उनको हमेशा ऐसा लगता है क्योंकि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, दे डोंट वांट, दे फील कि दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय देयर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली देयर पेरेंट्स. एंड देन दे फील कि मेरे पेरेंट्स मुझे सुन नहीं रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट आई वांट, दे ओनली केयर अबाउट व्हाट दे वांट. मेरे को वो अभी भी बच्चा ही समझते हैं, छोटा सा. कर्फ्यू टाइम्स अगेन एज आई मेंशन कि भाई 7 बजे घर आना है, 8 बजे आना है, बिकॉज पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं बेटा 8 बजे अंधेरा हो जाता है, बी बैक होम. बच्चे कहेंगे नहीं मम्मी वो वाला फ्रेंड तो रात को 9 बजे तक बाहर रहता है, उसके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, व्हाई आर यू सो स्ट्रिक्ट, व्हाई आर यू सो रिजिड अबाउट दीज थिंग्स. तो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी कॉमनली सीन की फैमिली की ये छोटी छोटी चीजों की वजह से बच्चे उसको गलत प्रपोर्शन में ले जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टू ओवर रिएक्ट ऐसी सिचुएशंस में. नेक्स्ट इज सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. दिस इज समथिंग आई थिंक हर पेरेंट स्ट्रगल कर रहा है अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम मैनेज करने के लिए, बिकॉज सोशल मीडिया हैज ओवरटेकन अ लॉट ऑफ आवर टाइम. हमारी लाइफ कंप्लीटली सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुकी है. तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, गेमिंग एडिक्शन बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया पे कांस्टेंट स्क्रोलिंग एंड कंपैरिजंस बहुत ज्यादा है.
इसकी वजह से क्या होता है, ये टीनेजर्स में स्पेशली ये फीलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे दे कनेक्टेड टू अ ग्लोबल लेवल, राइट? तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन होने लगते हैं कि लड़कियों में कंपैरिजन बहुत कॉमनली देखा जाता है, वेयर दे आर सेइंग कि दैट गर्ल इज सो ब्यूटीफुल, व्हाई एम आई नॉट ब्यूटीफुल लाइक हर, या फिर दैट person has so many things, why don't I have so many things, why don't my parents buy so many things for me? तो ये चीजें बहुत कॉमन है ऑनलाइन, सोशल मीडिया एंड ऑल की वजह से। देन ऑनलाइन सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं उनके बच्चे सेफ रहें ऑनलाइन। एवरीथिंग इज नॉट सेफ, ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन इज आउट देयर फॉर द वर्ल्ड टू सी। तो पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि अपनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन करो, बी केयरफुल विद हु यू आर टॉकिंग टू, आप किससे बात करो, हर चीज का ध्यान रखो। बच्चों को उस टाइम पे क्या लगता है कि हमारे पेरेंट्स को हमें समझ नहीं रहे कि हम बड़े हो गए हैं, वी कैन मैनेज आवर ओन सेल्फ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, कि वो नहीं चाहते समथिंग बैड हैपेंस विद। जबकि बच्चे फिर क्या देते हैं, बच्चों को लगता है हमें पता है, वी नो हाउ टू वर्क विद सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। सो वो उस चीज को सही डायरेक्शन में नहीं लेते, उसकी वजह से भी कई बार आर्ग्यूमेंट्स पेरेंट्स और बच्चों में हो जाती है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कम करो एंड बच्चे कहते हैं हम तो करेंगे, हाँ, आप हमें मत सिखाओ दीज थिंग्स। देन गेमिंग एडिक्शन इज वेरी कॉमन दीज डेज, स्पेशली प्री टीन्स एंड टीनेजर्स में। uh, recently there was this game PUBG, okay? So PUBG में इतना लाइक बच्चे इतना ओवर इंडल्ज हो गए थे, नॉट जस्ट किड्स, ओके, पीपल एज मच एज इन 30s PUBG में बहुत ज्यादा इंडल्ज थे, दे वुड कॉन्स्टेंटली कीप ऑन प्लेइंग एंड एवरीथिंग। हाउएवर व्हाट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इज कि अ गेम सच एज PUBG जो बहुत ज्यादा वायलेंस प्रमोट करता है, जिसमें वायलेंस है, अग्रेशन है, उसकी वजह से बच्चों में भी अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड वायलेंस इज वेल। एंड 99.99% रिसर्च यही कहती है कि जो बच्चा बचपन से वायलेंट चीजों में एंगेज करेगा, वायलेंट गेम्स खेलेगा, नॉट जस्ट गेम्स, टीवी देखेगा जिसमें कार्टून्स में कुछ वायलेंट हो रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो रही है, एंड इट डजंट इवन हैव टू बी अब्यूजिव, इट कैन बी एज सिंपल एज कि मम्मी मुझे मत सिखाओ, मम्मी मुझे आता है, मम्मी आप ज्यादा समझदार नहीं हो। सम थिंग्स जो आजकल के कार्टून्स में, लाइक देयर इज दिस कार्टून पेपा पिग आजकल बहुत चल रहा है, उसमें काफी बार इट इज मेंशन जहाँ पेपा अपने पापा को बोलती है जाके कि डैडी पिग आप तो बुद्धू हो। So things like these, which are very actually very simple, सुनने में बहुत normal लगेंगी, but when you think about it, it is teaching our children कि it is okay to call your parents stupid, which it should not be. So things like these, कि normal cartoon भी देख रहे हैं जिसकी language is not very nice, or something, games which are violent such as PUBG, उनसे बच्चों में aggression भी बढ़ता है, and they learn things that they should not. So इसलिए social media and technology, TV, gaming, cartoons, all of these things we need to be very careful with कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। And in fact, there was this study recently, Indian study हुई है, जिसमें दिखाया गया है कि ज्यादातर जो कार्टून्स बच्चे देखते हैं आजकल, वो एक्चुअली बच्चों में अग्रेशन प्रमोट कर रहे हैं। नॉर्मल कार्टून्स, दे डोंट इवन हैव टू बी, कुछ भी उसमें लैंग्वेज भी खराब नहीं है, एंड दिस इज बिकॉज उनका वो कार्टून इतना ज्यादा विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को कि वो कॉन्स्टेंटली हाइपर एक्टिव रहते हैं, उन्हें इमीडिएटली स्टिमुलेशन चाहिए, नहीं मिल रही तो वो गुस्सा करेंगे अपने पेरेंट्स पे, और अगर गुस्सा नहीं कर रहे तो वो चिड़चिड़ करेंगे, जिसकी वजह से बच्चों में ADHD के केसेस, विच इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चा टिक नहीं रहा है, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा बढ़ गया है आजकल के कार्टून्स की वजह से। जबकि जो पुराने कार्टून्स थे जिनको देख के मैं बड़ी हुई हूँ, या बिफोर माई टाइम एज वेल, लाइक टॉम एंड जेरी, ऑसवर्ल्ड, कार्टून्स लाइक दैट, ड्रैगन टेल्स, विच वर मच बेटर, एंड उनकी वजह से बच्चों में अग्रेशन डेवलप नहीं होता था। नेक्स्ट वी go on to emotional challenges. Now emotional challenges, again hormonal changes की वजह से emotional challenges बहुत ज्यादा होते हैं, they don't know how to deal with them, उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा होता उनके क्या emotions है, क्यों हो रहे हैं, what is the reasoning behind it। और कई बार ऐसा होता है उनको लगता है सिर्फ मेरे को ही हो रहा है, बाकियों को नहीं होता है ऐसा, इट्स ओनली हैपनिंग विद मी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सेल्फ आइसोलेशन कर लेते हैं काफी बच्चे, दे फील लोनली, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है उनकी इस एज में, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी काफी बढ़ जाता है। एंड ऑनेस्टली एंग्जाइटी आजकल के teenagers में is 67% more as compared to when I was a teenager. So बहुत ज्यादा बढ़ गया है लास्ट 10 years में, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस के केसेस टीनेजर्स के बहुत ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसका वन ऑफ द मेन reasons is they are not able to share any details of their own life or anything with their parents। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
नाउ वी मूव ऑन, हमने तो समझ लिया कि क्यों हो रहा है ये सब या कॉमन ट्रिगर्स क्या क्या है। नेक्स्ट इज व्हाट नॉट टू डू। जब हमारा बच्चा हम पे गुस्सा कर रहा है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट इज शाउटिंग। हमें कभी नहीं चिल्लाना चाहिए, बिकॉज टीनेजर्स एज आई मेंशन आर वेरी ब्रूटल। वो क्या करेंगे, अगर आप बात कर रहे हो, उन्होंने चिल्लाया, आपने चिल्लाया ना, दे टेक इट अप एज अ चैलेंज और वो और चिल्लाएंगे। फिर आप और चिल्लाओगे, वो कहेंगे देखते कितना चिल्लाओगे, फिर वो और चिल्लाएंगे। स्टिल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर हम चिल्लाते हैं, इट्स जस्ट इनवाइटिंग देम टू बी मोर अग्रेसिव विद अस। तो इसमें हमें कभी चिल्लाना नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट इज थ्रेटनिंग हार्श पनिशमेंट्स। कभी भी ज्यादा धमकी नहीं देनी चाहिए जब वो गुस्सा कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स यूज करते हैं वर्ड्स सच एज बाथरूम में बंद कर देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे तुम 1 घंटा, डिनर नहीं मिलेगा, हमारा फोन छीन लेंगे। दीज आर थिंग्स जो पेरेंट्स बहुत कॉमनली बोल देते हैं, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स आउट ऑफ कंसर्न, क्योंकि लग रहा है उनका बच्चा बहुत है। बट इस सबसे होता क्या है, बच्चे ना उसको सिर्फ पनिशमेंट देखते हैं। दे विल नेवर अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड इट, क्यों कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से माय पेरेंट्स आर सेइंग दीस थिंग्स टू मी। दे डोंट केयर कि हमने क्या किया, दे ओनली केयर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। एंड टीनेजर्स हैव दिस टेंडेंसी टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, कि अगर आपने उनको कहा कि फोन ले लिया, दे विल होल्ड ऑन टू इट कि मेरे पेरेंट्स तो फोन छीन लेते हैं मेरा, मेरे पेरेंट्स तो फोन छीन लेते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम समथिंग हैपेंस, दे इवन गो ऑन टू सेइंग स्टफ सच एज क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा फोन ले लोगे ना, ले लो। So these things are very common. I have a friend. It's very sad honestly, but उसके parents उसे बहुत मारते थे, बहुत ज्यादा। And she's my age, okay? She's older than me in fact. And अब वो इस स्टेज पे आ गई है, she often says कि मैं कहूंगी ना कि यार गलत हो गया, तेरे को डांट पड़ जाएगी इस बात पे। तो कहती यार डांट छोड़, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेंगे, मार ही देंगे ना, थप्पड़ वप्पड़ मार देंगे, घर से निकाल देंगे 2 घंटे के लिए, रात को घर से बाहर भेज देंगे। So these things don't matter to her anymore. And she has lost all respect for her parents because of these things. Even though हो सकता है वो उसका अच्छा ही चाह रहे थे when they started doing these things. But long run में क्या हुआ? She got so used to these things that she is no longer affected. In fact, इन चीजों का मजाक उड़ाती है वो। वाइपर से ही तो मार लेंगे ना, क्या कर लेंगे, गरम गरम चिमटा लगा देंगे। These things. No, these obviously are very extreme and ज्यादातर पेरेंट्स ऐसी चीजें नहीं करते। बट जब बच्चे ने एक्सट्रीम चीजों के लिए भी यूज टू हो सकते हैं, सो समथिंग एज सिंपल एज फोन छीन लेना या कहना कि डिनर नहीं मिलेगा, पेरेंट्स बच्चे इन चीजों का भी गलत सेंस ले लेते हैं। दे कैन होल्ड ऑन टू दीज थिंग्स फॉर लाइफ। हमें होता है ना अच्छी बातें याद रहना रहे, बुरी बातें हमेशा याद रहती हैं। सो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। नेक्स्ट भी आप स्कोल्डिंग और लेक्चरिंग। अगेन इट्स द सेम थिंग। अगर हमारा बच्चा भी बहुत गुस्से में है और हम उनको लेक्चर कर रहे हैं, डांट रहे हैं लगातार, वो कभी नहीं सुनेंगे। इट विल ऑलवेज भी हम उनको समझाने के लिए उनको समझ बोल रहे होंगे, एंड वो उस चीज का गलत मतलब निकालेंगे और बहस करेंगे आगे से। आप उनको बोलोगे बहस मत करो मेरे से, वो कहेंगे आपको तो मैं कुछ भी बोलूं आप तो सुनते ही नहीं। इट विल रिजल्ट इन एन आर्ग्यूमेंट। अभी सिर्फ गुस्सा था, आप डांट रहे थे, अब आर्ग्यूमेंट हो गई। आर्ग्यूमेंट हो गई तो वो बात बहुत एस्केलेट हो जाएगी ओवर टाइम। नेक्स्ट इज डिसमिसिंग देयर फीलिंग्स। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, बच्चे कई बार कहते हैं कि मुझे ये बात हर्ट कर रही है, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ दिस, आई एम सैड बिकॉज ऑफ दिस, मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा है, मेरे को उस फ्रेंड ने धक्का मार दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है। और कई बार पेरेंट्स मजाक में ले लेते हैं और कह देते हैं इतनी भी कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है, इतना चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है। उससे क्या होता है, बच्चों को लगता है पेरेंट्स उन्हें डिसमिस कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, दे आर बीइंग अनहर्ड इन देयर ओन फैमिली। ऐसी सिचुएशन से चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आगे जाके दे डोंट शेयर देयर फीलिंग्स विद देयर पेरेंट्स, या कुछ भी वो शेयर ना करें। अगर आपने अपने बच्चों को डिसमिस कर दिया व्हेन दे शेयरिंग एनीथिंग, एनीथिंग दैट दे फीलिंग, उससे क्या होगा, आगे जाके एक तो वो आपसे बातें शेयर नहीं करेंगे, और उससे ज्यादा उनको ऐसा लगेगा कि इस घर में मेरा तो कोई है ही नहीं। और वो फीलिंग बहुत गलत आ जाती है, स्पेशली इन टीनेजर्स, बिकॉज आजकल टाइम्स हैव चेंज्ड अ लॉट। चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर इमोशनल and they're trying to gain more independence over their lives as compared to when we were young. तो क्या होता है कि विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस कई बार एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं बच्चे, कि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए बच्चों में कभी भी, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो इसलिए हमें कभी भी उनकी फीलिंग्स डिसमिस नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज सुनो क्या बोल रहे हैं, समझो क्या बोल रहे हैं। ऑब्वियसली उनको समझाओ कि ओवर रिएक्ट कर रहे हो आप थोड़ा सा, बट इन अ वे कि वो गलत ना लगे उनको। एंड द लास्ट इज इग्नोर देम, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। इग्नोर नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, ऑब्वियसली विद अ लिमिट। वो क्या बोल रहे हैं जब तक सही है तब तक सुनो, बट देन ऑब्वियसली यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट टू क्लियर इट टू देम कि जो चीज गलत है वो गलत है। नाउ मूविंग ऑन,
नेक्स्ट इज व्हाट टू डू। हमने ये तो सीख लिया क्या नहीं करना है, नेक्स्ट इज क्या करना है। जब बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, वन थिंग वी शुड एज पेरेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर इज स्टेइंग काम। अगर हमने वहां पे पलट के गुस्सा कर दिया, वो उसके बाद आगे से गुस्सा ही करेंगे, वो कभी भी उस सिचुएशन को कामली नहीं लेंगे। दे विल नॉट सी इट कि हमारे पेरेंट्स हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको एक आर्ग्यूमेंट करने का मौका ढूंढेंगे। सो वी नीड टू बी काम, स्टे एज काम एज पॉसिबल। एंड ऑब्वियसली हमेशा पॉसिबल नहीं होता, कई बार बच्चे बहुत बदतमीजी कर देते हैं। उस सिचुएशन में भी वी नीड टू स्टे काम। कई बार वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक कि ठीक है भाई, इट्स ओके, नहीं करनी है बात अभी मत करो, विच इज गिविंग देम स्पेस। आप अब दोनों दोनों गुस्से में हो, दोनों की हीटेड बात हो जाएगी, उससे अच्छा है टेक अ स्टेप बैक। वो पीछे नहीं हट रहे, यू टेक अ स्टेप बैक, गिव देम स्पेस, टेल देम ठीक है भाई, इट्स ओके, यू डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ, अभी तुम बात करने की हालत में नहीं हो, यू आर वे टू एंग्री टू हैव अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन। हम दूर हट जाते हैं, थोड़ी देर बाद व्हेन यू आर रिलैक्स्ड वील टॉक। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजिंग देम एंड देयर फीलिंग्स। कभी भी इग्नोर नहीं करना है। टेकिंग अ स्टेप बैक इज ओके, बट कभी इग्नोर नहीं करना है, हमेशा एक्नॉलेज करो। यू कैन से थिंग्स लाइक, बेटा देखो मुझे समझ आ रहा है तुम गुस्से में हो, बेटा आई कैन सी यू आर वेरी अपसेट, यू आर क्राइंग बिकॉज इट मेड यू अपसेट, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। ऑलवेज एक्नॉलेज व्हाट दे आर सेइंग, लेट देम नो इट्स ओके। जब उनको पता होगा इट्स ओके, देन दे विल अंडरस्टैंड जो वो फील कर रहे हैं वो गलत नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है that they can talk to their parents or anybody in whatever way they want. Give them space. जब हम अकेले जैसे होता है as parents also, या हमें भी कभी कभी होता है when we are arguing या गुस्सा चढ़ रहा होता है, हम भी कहते हैं यार अभी नहीं, talk to me after 10 minutes, give me half an hour to myself. It's the same thing with kids. उनको 10 मिनट दो, they'll probably calm down, they'll think about the situation, and then वो एक better mental state में होंगे बात करने के लिए। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट देयर फीलिंग्स। हमें हमेशा अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए फ्रॉम अ वेरी यंग एज कि क्या करना, क्या हुआ बेटा। अगर वो गुस्से में भी है ना, लेट देम नो बेटा ठीक है, आई कैन सी यू वेरी एंग्री, बट मुझे ये तो बताओ हुआ क्या, आपको किस बात से गुस्सा आ रहा है, कोई चीज हुई है जिससे आप इतना नाराज हो, पापा ने कुछ बोला, मम्मा ने कुछ बोला, हमारी कोई बात बुरी लग गई। हमेशा उनको एनकरेज करो कि वो बात शेयर करे रादर देन शटिंग डाउन। उससे क्या होगा, उनको लगेगा हाँ मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, हाँ मेरे पेरेंट्स समझना चाहते हैं मुझे क्या हुआ है। दे आर मोर लाइकली टू शेयर विद देयर पेरेंट्स देन, एंड इससे ज्यादा क्या होगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप भी बेटर होगा। बच्चों में हमेशा ये फीलिंग रहनी चाहिए दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस माय पेरेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर मी, रादर देन अगर मैंने पेरेंट्स को बताया वो गुस्सा करेंगे। बच्चों को हमेशा ये लगना चाहिए इवन इफ मेरे को स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया है ना, जबकि और मेरी गलती नहीं है, बच्चे डर जाते हैं अपने पेरेंट्स को बताने में कि बच्चे पेरेंट्स कहेंगे कि तुमने ही कुछ किया होगा। उस फीलिंग से ज्यादा बच्चों में ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं अपनी मम्मी पापा को जाके बताऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ स्कूल में, उन्होंने मुझे बिना बात की, मेरी गलती भी नहीं थी, मुझे सस्पेंड किया। मेरे पेरेंट्स मेरा स्टैंड लेंगे, मेरी बात समझेंगे और स्कूल वालों से आके बात भी करेंगे कि बच्चे की गलती नहीं थी। बच्चों में वो फीलिंग होनी चाहिए, एक उस लेवल का उनमें रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ होना चाहिए उतना अच्छा। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग हेल्दी आउटलेट्स। दिस इज अ वेरी हेल्दी टेक्निक, वेरी हेल्पफुल। पर्सनली मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, दिस एक्चुअली हेल्प्स। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है आपके बच्चों को, आप उन्हें समझाइए, चिल्लाना चीखना दरवाजे मारना इज नॉट हेल्दी। यू कैन डू समथिंग दैट इज एक्चुअली हेल्दी। आप अगर आपका बच्चा एक्सरसाइज वगैरह करने में है, फिजिकल एक्टिविटीज उनको एंगेज करती है, उनको अच्छा लगता है, टेल देम टू गो फॉर अ रन। उनको कहो यू कैन राइट इफ दे वांट टू, लाइक दे वांट टू राइट और जर्नल, जो आजकल बहुत ज्यादा चल भी रहा है। इट्स एक्चुअली द मोस्ट हेल्पफुल टेक्निक टू डील विद अग्रेशन। जर्नल जिसमें आप बस अपने थॉट्स लिख दीजिए। आप क्रिएटिविटी आप उनको बोल सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो, ये कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग दैट्स अदर देन नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन इमोशंस। नाउ ये तो होगी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज जो हमें ऑन द स्पॉट करनी है जब हमारा बच्चा गुस्सा कर रहा है, विच इज दूर रहो, उनको स्पेस दो, उनसे थोड़ा सा खुद भी काम हो, उनको भी काम होने का चांस दो, एंड देन टॉक जब दोनों तसल्ली से बात कर सकते हैं और सिचुएशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। व्हाट डू वी मीन बाय लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज ओवर हियर इज, जो हमें सिर्फ जब गुस्सा आ रहा है उस सिचुएशन में नहीं, बट ओवरऑल अपनी लाइफ में करनी है। जिससे क्या होगा, हमारे बच्चों के इमोशंस रेगुलेट होंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बचपन से ही हम ये चीजें शुरू कर सकते हैं ताकि उनका अग्रेशन आए ही ना उस लेवल पे कि बाद में जाके वो एक प्रॉब्लम बन जाए। So now these long-term strategies start from the very beginning, right? So first is setting boundaries. Boundaries का क्या मतलब होता है, हम अपने बच्चों के लिए एक लिमिट सेट करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है।
देखो कहते हैं ना, हर अति हर चीज की बुरी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। एनीथिंग व्हेन इट क्रॉसेस अ पर्टिकुलर लिमिट वो खराब है। यू नो, हमें उनके लिए एक बाउंड्री सेट करनी है। डूइंग दिस इज ओके, डूइंग दिस इज नॉट ओके। अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं, बचपन से ही हमें उन्हें सिखाना है कि बेटा गुस्सा करना ओके है, रोना ओके है। जैसे कई पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं रोना नहीं है, इट्स वेरी रॉन्ग। हमें अपने बच्चों को कहना चाहिए बेटा रो लो, इट्स ओके, लेट योर इमोशंस आउट। कर लो जो आपको, जो तरीके से आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, यू नो, डोंट बॉटल देम अप। उनको सिखाओ कि इट्स ओके, बट एक लिमिट तक। आप गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, अपने पेरेंट्स से लड़ाई हो गई है, दैट्स ओके। गुस्सा करना ठीक है, अपनी बात रखना ठीक है, बट अपने मम्मी या पापा से बदतमीजी करना गलत है। आप अपनी बात रखो, स्ट्रक्चर योर पॉइंट। अपनी मम्मी को बोलो कि मम्मी, आपने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, आपने मुझे जाने से मना किया, मेरे को बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप हमेशा मेरे पे डाउट करते हो, आप मेरे एग्जाम में मार्क्स खराब आए, आप मुझे कह रहे हो कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, जब आपको पता है कि मैं पूरा टाइम बैठ के पढ़ रही थी। ऐसे बोलो, रादर देन अपनी मम्मी पे चिल्लाना कि मम्मी आप तो हमेशा ही ऐसे कहते हो, मैं पढ़ रही थी, आपको क्या पता। समथिंग लाइक दैट। आप अपने बच्चों को समझाओ, देखो ये यहाँ तक ठीक है, बट क्रॉसिंग दैट बाउंड्री इज रॉन्ग। ओके। एंड वन थिंग अबाउट बाउंड्रीज इज, हमेशा वी नीड टू कीप दोज बाउंड्रीज वेरी स्ट्रिक्ट। काफी लोग कहेंगे यू नो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, बट फ्लेक्सिबिलिटी एक लिमिट तक होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू बाउंड्रीज, हमेशा बार बार हमें चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर हमने आज अपने बच्चे को अलाउ किया है कि वो 8 बजे तक घर आएगा, तो वो समझेगा कि 8 बजे तक घर आना इज ओके। अगर आप कभी वो बाउंड्रीज चेंज भी कर रहे हो, यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद देम कि ये सिर्फ इस बार के लिए है, नेक्स्ट टाइम यू नीड टू बी होम एट 7। या अगर वो बाउंड्रीज ऐसी होनी चाहिए कि ठीक है, तुमने गुस्सा किया, अगली बार तुमने अपनी मम्मी पे चिल्लाया, तो फिर शी इज नॉट टॉकिंग टू यू फॉर 2 days। नोबडी इज टॉकिंग टू यू फॉर 2 days। अगर आप ऐसे चिल्लाओगे, नोबडी विल टॉक टू यू। तो वो बाउंड्री सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग कम्युनिकेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एज अ फैमिली एवरीबडी शुड प्रैक्टिस दिस। कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल। हमें हमेशा अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए एक दूसरे से। पेरेंट्स जब तक बच्चों से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, बच्चे भी अपनी फीलिंग्स पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। फीलिंग्स हाइड करना इज नॉट हेल्दी। बिकॉज क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स बॉटल अप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और फिर जब एक साथ ना वो बॉटल ओवरफ्लो हो जाती है ना, फिर वो टूट जाएगी ना, तो व्हाट विल हैपन इज अग्रेशन। वो पूरा ब्लास्ट होता है एक साथ। तो उससे अच्छा है, आप छोटी छोटी चीजें भी अगर आपको बुरी लग रही हैं, कुछ भी हो रहा है, ऑलवेज शेयर कर। लाइक अगर एज अ पेरेंट आप उनको सिखा कैसे सकते हैं चीजें, आपके बच्चे ने गुस्सा किया, आपके बच्चे ने चिल्लाया आप पे, टेल देम। आराम से, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, उनको आराम से बोलो, पहले आप दूर हो जाओ, सांस लो लंबी, काम योर सेल्फ डाउन, गो बैक टू देम एंड टेल देम, बेटा आज आपने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, आप मेरे पे चिल्ला के बात कर रहे थे, मुझे बहुत खराब लगा, प्लीज डोंट डू दिस अगेन, अदरवाइज फिर आई वोंट बी एबल टू टॉक टू यू। हम कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे अगर आप मुझ पर चिल्लाओगे तो। हमेशा ध्यान रखो, ऐसे बात नहीं करनी है, नो मैटर आप कोई भी आपके सामने। आप ये बातें जब खुद कम्युनिकेट करेंगे, आप जब गुस्सा करके दिखाएंगे, बच्चे को सिर्फ गुस्सा दिखेगा, दे विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बट जब आप ये बातें कामली बोलेंगे, वो सुनेंगे भी, एंड कहीं ना कहीं दे रियलाइज देयर मिस्टेक एज वेल। आई एम प्रीटी श्योर दे वोंट कम एंड अपोलोजाइज। ज्यादातर टीनेजर्स अपोलोजाइज नहीं करेंगे फॉर देयर ओन मिस्टेक्स, बट एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे विल अंडरस्टैंड, एंड कहीं ना कहीं दे विल ट्राई नॉट टू रिपीट दैट। नेक्स्ट इज मॉडलिंग बिहेवियर, विच इज अगेन मॉडलिंग। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जो देखता है घर में वही सीखता है, जिस माहौल में रहेगा बच्चा वही करेगा। इट्स दैट सिंपल। हम अगर अपने बच्चे को दिखाएंगे हाउ टू बी काम, गुस्सा आ भी रहा है तो भी बदतमीजी करने की, चिल्लाने की, यू नो इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है किसी को। हम अपना गुस्सा शांति से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपना गुस्सा हेल्दीली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हम अपने बच्चों को वो शो करेंगे, हमारे बच्चे वो सीखेंगे। अगर बच्चा बचपन से देख रहा है दैट माय पेरेंट्स, यू नो, व्हेन दे फाइट लाइक एनीथिंग, दे आर्ग्यू हमारे सामने, यू नो, दे स्टार्ट यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, दे हिट ईच अदर, या एनीथिंग लाइक दैट, बच्चे भी वो सीखेंगे एंड दे विल बिगिन टू थिंक दिस इज वेरी नॉर्मल टू डू, कि ऐसा कर सकते हैं, दिस इज ओके। पर जब वो देखेंगे कि माय पेरेंट्स नेवर डू दिस, मेरे पेरेंट्स लड़ते नहीं है, उनको गुस्सा आ भी रहा है, दे टेक टाइम अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर गुस्सा आल्सो इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव मैनर। आराम से बोलते हैं कि मम्मा पापा की लड़ाई हो गई थी किसी बात पे, तो वो दोनों अभी थोड़ा सा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बट हम अपनी लड़ाई सॉल्व कर लेंगे। ऐसी चीजें जब बच्चे देखते हैं, वो सीखते हैं कि हेल्दी वे ऑफ आर्ग्यूमेंट भी है, एग्जिस्ट करता है, कि हम डिसअग्री कर सकते हैं, बट उसके लिए जरूरी नहीं है हमेशा बहस करना।
हमें हमेशा नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस रोकना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस कभी मना नहीं करना चाहिए। बच्चा रो रहा है, रोने दो। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू वॉच समबडी क्राई, लेट अलोन योर ओन चिल्ड्रन, बट कभी कभी रोना बहुत जरूरी होता है। एक्सप्रेशन आएगा, बाहर निकलेगा, दैट इज मच बेटर देन बाद में वो पेंट अप हो के गुस्से में बाहर आना। रोने दो, निकलने दो सारे इमोशंस बाहर, एंड देन दे विल बी इन अ बेटर मेंटल स्टेट टू टॉक देम। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग हेल्दी आउटलेट्स। ये मैंने पहले भी मेंशन कर दिया है। हमें उन्हें स्टार्टिंग से ही सिखाना चाहिए कि इमोशंस को नेगेटिवली एक्सप्रेस करने की जगह हम हेल्दी कैसे एक्सप्रेस करें। ऑब्वियसली रोने दें, दैट्स अ वन थिंग। इसके अलावा जिन बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, लड़के काफी इंजॉय करते हैं ऐसी चीजें, अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पसंद है उन्हें, आप उन्हें कह सकते हैं दे कैन गो फॉर अ साइकिलिंग, रेगुलरली जा सकते हैं। व्हेन दे आर फिल्ड विद इमोशंस, फिल्ड विद अग्रेशन स्पेशली, आप जो साइकिलिंग करके आ जाएंगे। बच्चे साइकिल करने में बहुत हेल्प करता है। रनिंग, स्विमिंग, स्विमिंग एक्चुअली जो लोग रेगुलरली करते हैं उनको अग्रेशन लेवल एक्चुअली कम होते हैं, अग्रेसिव आउटबर्स्ट्स कम होते हैं। सो दीज आर थिंग्स जो उनको हेल्प कर सकती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जर्नलिंग, एज आई मेंशन्ड, वेरी ऑनेस्टली इट इज समथिंग जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है। जर्नल, एंड इट डजंट नीड टू बी कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आपको डेली का लिखना है। इट कैन बी एज सिंपल एज अभी कोई चीज फील हुई, अभी मेरी बहन ने मुझ पर चिल्ला दिया या मेरी मम्मी ने मुझ पर चिल्ला दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं बोल सकती उनको, बिकॉज गुस्से में हम कई बार ऐसी बातें करते थे दैट बाद में हम रिग्रेट करते हैं। तो रादर देन दैट, टेक अप अ पेन, पीस ऑफ पेपर, लिख लो जो फीलिंग आ रही है, लिख दो। जो गुस्सा होगा, जो फीलिंग्स होंगी, ऑन द स्पॉट निकल आएंगी ऑन द पीस ऑफ पेपर, एंड देन आप थोड़ा सा शांत फील करोगे। एंड इट डजंट इवन हैव टू बी अ पीस ऑफ पेपर। फोन पे टाइप कर दो, लैपटॉप खुला, लैपटॉप पे टाइप कर दो, एनीथिंग, बस गेट इट आउट ऑफ योर हेड। जब आपके दिमाग से वो चीजें बाहर निकलेंगी, यू विल बी एबल टू थिंक मोर रैशनली। आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि बेटा अच्छी चीजें भी आप लिख सकते हो। जर्नल करना है, अच्छी चीजें लिखो। एनीथिंग जो आपको अच्छा लगा आज के दिन में, समथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर, एनीथिंग दैट्स मेकिंग यू हैप्पी, राइट इट डाउन। जब हम वो चीजें लिखेंगे, इट विल गेट आउट ऑफ आवर सिस्टम, राइट। हमें अच्छा लगता है वो करके। एंड द लास्ट इज एनकरेजिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का ये मतलब नहीं है दैट यू नीड टू बी गुड एट ड्राइंग या स्केचिंग और एनीथिंग। आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, खुशी हो रही है, एनीथिंग, ऑल दोज इमोशंस, एक पेंसिल लो, कोई भी कलर लो, जो कलर आपको अभी आपके इमोशन से रेजोनेट करता हुआ दिख रहा है, आप वो गुस्से बस पूरा पेज पे कलर कर दो, सिर्फ पूरा पेज भर दो। चाहे यू कैन ड्रॉ समथिंग, जो इमेज दिमाग में आ रही है, जो थिंकिंग आ रही है, जो भी आ रहा है, यू कैन ड्रॉ इट आउट। दीज आर हेल्दी आउटलेट्स ऑफ इमोशंस। ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं स्पेशली टीनेजर्स को, बिकॉज ऑफन टाइम्स दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स। सो नॉट जस्ट अग्रेशन, दिस इज अ जनरल टिप कि कोई भी इमोशंस हैं, दे कैन वेरी एक्टिवली एक्सप्रेस देयर इमोशंस, या लेट देम आउट इन अ हेल्दी मैनर थ्रू दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब गुस्सा आ गया, लड़ाई हो गई, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, हमें अपने बच्चे को सिखाना है जो हो गया वो हो गया, इट्स इन द पास्ट। वी नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। उनको बस सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच रखें अपनी लाइफ में हर चीज को लेके। आई गिव यू एन एग्जांपल। एग्जाम में बच्चे के मार्क्स खराब आए, ओके। तो रादर देन सेइंग थिंग्स लाइक कि तुमने पढ़ाई नहीं की, मैंने तुम्हें बोला था, तुम्हें भी अपनी मेहनत में कोई कमी छूट गई, यू वर द वन हु डिड नॉट प्रिपेयर वेल, तुम्हें मैंने कहा था ऐसे करो, तुमने नहीं किया। इससे क्या होगा, बच्चे को दिखेगा दैट यू आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर मिस्टेक्स एंड नथिंग एल्स। वो करने की बजाय व्हाट वी कैन इंस्टेड से इज, बेटा देखो इट्स ओके, मार्क्स खराब आए, आप अपसेट हो इसकी वजह से, मुझे समझ आ रहा है, वेरी ऑब्वियस, आपके मार्क्स खराब आए, बुरा लगना बहुत नॉर्मल है इस सिचुएशन में। बट अब हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है, एंड देन हमें फ्यूचर सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखें। ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज अगर आप मेंशन भी करना चाहते हैं ना, आपके बच्चे ने पिछली बार कोई चीज छोड़ दी थी, रादर देन उसको एक ब्लेमिंग टोन में या एक्यूजेटरी टोन में यूज करना, वी कैन से समथिंग एज सिंपल एज, देखो पिछली बार भी डिसाइडेड टू डू मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट करने का हमने डिसाइड किया था, बट वो हो नहीं पाए या नहीं कर पाया, तो इस बार हम वो करके देखते हैं, शायद वो हमारी हेल्प करे। तो इससे क्या होगा, आपने पास्ट उनकी मिस्टेक भी पॉइंट आउट कर दी, बट इन अ वे जो उनको गलत भी नहीं लगेगी, एंड आपने उसके बाद उनसे वो बात भी कर ली, फ्यूचर पे भी फोकस करा दिया कि अब ये करते हैं, इससे इंप्रूव होगा। एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि हम अपने बच्चों से कैसे बात करेंगे, आवर कम्युनिकेशन ऑलवेज नीड्स टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। हमें उनसे एकदम काम होकर शांत होकर बात करनी है, कभी उन्हें ब्लेम नहीं करना है किसी चीज के लिए, अपना पर्सपेक्टिव कभी भी उन पे थोपना नहीं, उनको अपनी बात समझानी है, उनकी बात समझनी है।
और एक मिडवे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी। अगर आप अपने बच्चों पे अपना पर्सपेक्टिव डालेंगे, वो कभी हमेशा उसको गलत तरीके से देखेंगे, वो कभी समझेंगे नहीं दैट आप उनके भले के लिए कह रहे हो। उनको ये लगेगा पेरेंट्स हैं, वो बस अपनी बात मनाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज टू फोकस ऑन वी रादर देन आई और यू। इसका क्या मतलब है, जब भी हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं या किसी भी तरीके से हम किसी से भी बात कर रहे हैं, एंड यू नो द अदर पर्सन इज इन अ वल्नरेबल सिचुएशन, नॉट जस्ट गुस्सा बट अदरवाइज ऑल्सो, बच्चे कई बार कई इमोशंस शो करते हैं, तो हमें क्या करना है जब उनसे बात कर रहे हैं वैसी सिचुएशन में? हमें कभी भी ये नहीं बोलना तुमने ये किया, मैंने तुम्हें ये कहा था, तुम्हें वो करना चाहिए था। इट शुड ऑलवेज बी हम, वी टुगेदर। बिकॉज उससे क्या होगा, दे विल सी कि एक तो आप उनकी बात सिर्फ समझ नहीं रहे हैं, बट ऑल्सो you are being with them, they're not alone in this. If you'll notice, I always mention this कि हमें as parents, हमें as this. Why? Because अगर मैं बोलूंगी ना आपको as parents, आपको as वो, it's like I am leaving you all alone. So it's the same thing जो बच्चों को लगता है। अगर मैं अपने बच्चों को बोलूंगी कि आपको ये करना चाहिए था, तुमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, इट्स रॉन्ग। इट शुड ऑलवेज बी लाइक हमने ये चीज मिस कर दी, हमें अब ये करना पड़ेगा, हम आगे क्या कर सकते हैं। दीज थिंग्स हमारे बच्चों को हेल्प करती हैं टू स्टे कनेक्टेड टू अस, और उनको भी लगता है माई पेरेंट्स आर विद मी। तो वो एक हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए भी काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग कनेक्शन, जो मैं अभी बता रही थी। हमें हमेशा बचपन से ही बच्चों के साथ इफ वी कैन बिल्ड अ प्रॉपर कनेक्शन विद देम, हाउ वी कैन डू दैट? क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम अलग, सबका अपना अपना होता है, हर फैमिली का अपना हो सकता है। यू कैन शेयर मील्स टुगेदर कि एवरी सैटरडे हम डिनर तो साथ में करेंगे ही करेंगे, नो मैटर आर बिजी स्केड्यूल्स, क्योंकि आजकल ऑफन टाइम्स बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग। वैसे भी पेरेंट्स इतना अपना ही लाइफ में काफी कुछ चल रहा होता है, दे नॉट एबल टू गिव प्रॉपर टाइम टू देयर चिल्ड्रन। तो वो चीजें हमें ध्यान में कि मील्स शेयर कर सकते हैं, वंस अ मंथ फैमिली पिकनिक्स पे जा सकते हैं, मूवी नाइट्स कर सकते हैं। मूवी नाइट्स कैन बी वेरी रैंडम कि वंस हम एक मूवी देख रहे हैं, लाइक एक हफ्ता हमने देखी बच्चों के पसंद की मूवी, नेक्स्ट हफ्ता हम पेरेंट्स की पसंद की मूवी देख रहे हैं, एवरीबडी गेट्स टू चूज अ मूवी वंस इन अ वाइल। या आप एक एक बोल ले सकते हैं, उसमें मूवीज डाल दी सबने अपनी अपनी पसंद की, एक रैंडमली एक चिट उठा ली, थिंग्स लाइक दैट। वो रिलेशनशिप बिल्ड करती है, बच्चे इंजॉय करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना इस चीजों में। बच्चों के इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बना सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को बच्चों के सामने ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो भी उसमें इन्वेस्ट हो जाए। वी नीड टू बी इन्वॉल्व इन आवर चिल्ड्रंस लाइफ। वो आपसे अपनी कोई बात शेयर कर रहे हैं, आज स्कूल में पता है ये हुआ वो हुआ, नेवर इग्नोर देम, हमेशा उनकी बात सुनिए, समझिए वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है हाँ यार मेरे पेरेंट्स आर लिसनिंग टू मी, तो वो आपका एक कनेक्शन बिल्ड करता है। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग सेल्फ एस्टीम एंड इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली मैंने मेंशन किया है कि एक इंडिपेंडेंस अपना इंडिपेंडेंस गेन करने की एक नीड रहती है इस एज में काफी ज्यादा। तो लेट देम डू दैट। उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं छोटी छोटी, और अगर वो काम सही से करें, बी अप्रिशिएटिव, उनको कहो हाँ आपने बहुत अच्छा किया। एंड अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, जैसे उन्होंने घर की सारी बेडशीट्स सही से करी, गिव देम स्मॉल रेनफोर्समेंट, समथिंग लाइक कि दिस इज अ चॉकलेट फॉर यू, आज आपने सारा काम इतना अच्छे से किया। या यू कैन वॉच टीवी फॉर हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, सारा काम अच्छे से किया। ऑब्वियसली हर बार नहीं, बट ऑल्टरनेट टाइम्स आप कर सकते हैं, उनसे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलती है काम करने की। एंड एट द सेम टाइम अगर उनसे कोई गलती होगी, उनको समझाइए क्या गलती की है, कहाँ उन्होंने लैक किया है, बट इन अ वेरी काम टोन। उनको ओवर क्रिटिसाइज नहीं करना है, अदरवाइज उनको लगेगा मैं काम करूंगा ही नहीं, लेट इट बी। आपने तो डांटना ही होता है, छोटी सी गलती क्या होगी, 10 बार अच्छे से किया था आपने, वो नहीं देखा, इतना सा गलती हो गई आप डांट लगा रहे हो। कामली उनको समझाओ कि बेटा ये गलत था, आगे से ध्यान रखना प्लीज। एंड फाइनली दैट इज मेंटेनिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट। इसका साफ साफ सिंपल मतलब है, हमें हमारा होम एनवायरनमेंट इतना सिंपल, इतना हेल्दी रखना है दैट आवर चिल्ड्रन फील कंफर्टेबल, कि वो घर पे उनको एक कामिंग माहौल मिले, इट्स नॉट स्ट्रेसिंग देम आउट, जिसकी वजह से दे कैन शेयर देयर फीलिंग्स, एक्सप्रेस व्हाट दे आर फीलिंग। वो घर पे आके उनकी सेफ स्पेस, उनका घर होना चाहिए, नो प्लेस एल्स। घर आए उन्हें लगे अब सब ठीक हो जाएगा, मेरा घर परफेक्ट प्लेस है। ना हमने ये तो समझ लिया व्हाट वी कैन डू ओवरऑल। हाउएवर अगर इन सब चीजों से भी मैनेज नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली ये सब रातों रात ठीक नहीं करती हैं चीजें, बट ओवर टाइम भी अगर इस सबसे भी ठीक नहीं हो पा रही है सिचुएशन, देन हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। नाउ व्हेन डू वी डू दैट? अगर हमारा बच्चे का अग्रेशन बहुत एक्सट्रीम है, अनसेफ हो रहा है उनके लिए या दूसरों के लिए, और देर गेटिंग वायलेंट, या आपका बच्चा आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, पूरा दिन अपने कमरे में बंद रह रहा है, देर नॉट टॉकिंग टू यू एट ऑल, एट ऑल,
या फिर अगर उनका बिहेवियर या कुछ भी, उनके इमोशंस, उनका बिहेवियर उनकी पढ़ाई के साथ या उनकी सोशल लाइफ के साथ इंटरफेयर कर रहा है, then it becomes very important to seek professional help. You can go to any counselor or any psychologist जिनके पास आप जाके अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। आप बच्चे, कई बार ऐसा होता है, वो पेरेंट्स से वो बात नहीं करेंगे, बट दे माइट कम अक्रॉस एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू अ साइकोलॉजिस्ट और समबडी प्रोफेशनल, तो तब उनके पास जाना जरूरी हो जाता है। नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क इफ हमने ये तो सारा समझ लिया कि हमें कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से बात करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप लोग एक जैसे छोटा सा फ्रेज सोच सकें कि हमें गुस्सा करने की जगह क्या करेंगे हमें सिचुएशन में, गिव यू एन एग्जांपल। आपका बच्चा जिद कर रहा था, उसको मूवी देखने जाना है। आपने कहा नहीं नहीं बेटा आज नहीं, आज हम एक फैमिली इवेंट में जा रहे हैं, तो आज आप मूवी देखने नहीं जा सकते फ्रेंड्स के साथ। टैंट्रम थ्रो किया आपके बच्चे ने, काफी ज्यादा गुस्सा किया एंड वो अपने रूम में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ऐसी सिचुएशन में रादर देन बीइंग एंग्री और उनको डांटना, आप क्या बोलेंगे? लाइक इफ यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, समथिंग सिंपल जो आपको लगता है कि उनको भी गलत नहीं लगेगा एंड बाउंड्री भी सेट कर देगा उनके लिए कि क्या करना था क्या नहीं एंड एवरीथिंग। अगर आप में से कोई भी सोच सके। I would only say कि this time it's our choice, next time it'll be your choice. Next time, next day, maybe on next weekend, we'll be watching your choice, movie of your choice. That's what I do with my kids. That's actually really smart, honestly, because कई बार ना, we should offer solutions to our children. When I mentioned a solution focused approach, it should be something जो आपका अभी की प्रॉब्लम तो है। देखो, आपने जैसे अभी बोला, दैट्स वेरी स्मार्ट एक्चुअली, कि देखो इस बार हमारी बात सुन लो, अगली बार वी लिसन टू यू, आप जो बोलोगे। दैट्स वेरी स्मार्ट। आप उनको ऐसे समझा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक, बेटा ठीक है गुस्सा आ गया, ओके, बट दरवाजा नहीं करना था, आपको भी चोट लग सकती थी, कोई आपके पीछे होता उसको भी चोट लग जाती, आपका हाथ आ सकता था दरवाजे में, ऐसे नहीं करना है। एंड देन व्हाट यू सेड। वेरी स्मार्ट, बट आज की जो जनरेशन है ना, जेन एक्स, वो हमसे 10 गुना आगे है, जो मुझे समझ ट्रू। नहीं आ रही, और स्मार्टर आंसर दे देते हैं। दिस इज, इफ आई विल से इट्स ओके, इस टाइम पापा की चॉइस की मूवी देखो, नेक्स्ट टाइम हमारी चॉइस, आपकी चॉइस, इट्स ओके, वी कैन डू वाइस वर्सा। इस बार मेरी चॉइस की देख लो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे पापा की चॉइस। दैट इज द ट्रिकी थिंग, एंड देन वी डोंट नो व्हाट टू डू, देन वी आर लाइक, ओ ओके, क्या आंसर तो दे। ऐसी सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू इज, तो बहुत कामली आप उनको बोलिए, ठीक है बेटा इस बार आपकी पसंद की है ना, इट इज इन राइटिंग, नेक्स्ट टाइम हमारी पसंद की ही होगी, एंड देन यू कांट मेक एक्सक्यूजेस, एंड इफ यू मेक एक्सक्यूजेस द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट 10 टाइम्स हमारी मर्जी की है। बी विद देम एक फ्रेंडली तरीके से। वो हंस हंस के बातें बोल देते ना, वाइस वर्सा कर लेते हैं, आप भी हंस हंस के बोलो, ठीक है बेटा फिर हम भी नेक्स्ट टाइम ऐसे करेंगे, फिर देख लेना। ठीक है इस टाइम आपकी पसंद की मूवी लग रही है ना, स्नैक्स पापा की पसंद के होंगे, फिर यू नो बैलेंस, किसी की पसंद का किसी के पसंद का। क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनके साथ ना टू डील विद देम ना हमें ओवर स्मार्ट होना पड़ता है। I agree to it, and you were very helpful. All your things were very apt to it. जैसे आपने explain किया, it was nice though. But still, there are a lot of things that I have picked up personally as a parent, and I'm going to try it. I like the thing जो आपने बोला, jot down on a journal, color thing was very good, which I'm going to tell my child doing it, because yes, the aggression is there, and they don't know how to handle it. Basically, गलती बच्चों की भी नहीं है, उनको handle ही नहीं करना। एंड यू आर वेरी ट्रू। राइट, हम अपने टाइम में पेरेंट्स से डरते थे, ये डरते नहीं है। इनको सबने एग्जैक्टली। ओवर डिपेंडेंट और ओवर वो बना दिया है, कि ये कहते हैं कि हम बस, यस दैट एग्जैक्टली। इज, या। इसलिए ना देयर इज दिस बट थिंग। आई रिकॉर्ड, मेरा मन ऐसे भी कर रहा था that I really want him to listen to you once, or maybe you should talk to him. Maybe he'll come out with it as why my parents are wrong. That was also a good idea. That maybe he doesn't share it with me, he might share it with you. Definitely, definitely. Any day, if you feel comfortable and you think your child should talk to me, always there, you can just ping me personally, and I can have like a one-on-one session with him where we can talk, and ho sakta hai he might come across to me. Yeah, we're going to do it, because right now he's having his midterm exams. So after his exams get over around 25th, I'll make sure that once I want you to talk to him, and maybe you can maybe figure out some things, and you will be helpful to me, that you should do this, that your child is like working on this, or maybe whatever he's not liking, so that it'll help me as a parent. Definitely. Now, as Thank आपने कहा as a parent, sorry, you were saying.
No, I say thank you. You were very helpful. All this webinar was very helpful. और मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरे पे ही था. It's apt for me. एक्चुअली ना ये प्रॉब्लम सबकी कॉमन है. सब पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग, नॉट जस्ट पेरेंट्स. आई हैव अ यंगर सिस्टर, शी इज 10 years old and I am experiencing all these things with her. As an elder sister, I am experiencing all these things. So I think it's every parent goes through these things and having these feelings. My parents are having those feelings again after such a long time. They're having these feelings again कि अभी तो एक को हैंडल किया था, दो को हैंडल किया था, अब ये वाली को भी हैंडल करेंगे, again. And things have changed. The things that used to work with me and my sister are not working with her now. एंड जैसे हम बात करते हैं कि इतना सब बच्चों के साथ हो रहा है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टेक इन टू अकाउंट कि बच्चों की इन सब चीजों की वजह से पेरेंट्स बहुत अफेक्ट होते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली पूरा टाइम बच्चों से ये सब डील करना, दे गेट ओवरवेल्म, especially the primary caretaker, which is usually the mother. No matter if the mother is a homemaker or if she's working, no matter what, primary caretaker, most of the dynamics, I mean, yes, fathers भी होते हैं, but mostly mothers होती हैं. They get so overwhelmed with emotions कि सारा टाइम ऐसा लग रहा होता है कि ना क्या करें, हम थक गए हैं. एंड वो सेल्फ ब्लेम बहुत जल्दी आता है पेरेंट्स में कि हमने कुछ गलती कर दी, हमने कुछ कमी छोड़ दी. So it becomes very important to understand we should never, never, never take our child's behavior personally. अगर उन्होंने कुछ गलत भी बोल दिया है ना, we should never take it upon us as parents. हमें सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना चाहिए. हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर वॉक्स, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड एज आई मेंशन जर्नलिंग या कोई भी एक्टिविटीज जैसे मेंशन की थी मैंने हेल्दी आउटलेट्स में, वो एक्टिविटीज एक्चुअली पेरेंट्स भी कर सकते हैं, एनीबडी इन फैक्ट. आप अपने ऊपर फोकस करिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ. बच्चे बहुत ज्यादा चिक चिक कर रहे हैं, समटाइम्स जस्ट लेट देम बी. एज अ पेरेंट, टेक सम स्पेस फॉर योरसेल्फ. इट्स ओके, वो कर रहे हैं, उनको कोई काम दे दो, कुछ भी दे दो टू एंगेज देम. एंड अपने ऊपर फोकस करो. ठीक है, आधा घंटा मैं बच्चों की कोई चिक चिक नहीं सुनूंगी आज. थिंग्स लाइक दैट. सेल्फ केयर एक्टिविटीज में एंगेज करना चाहिए. समथिंग एज सिंपल एज गोइंग फॉर अ मसाज, पार्लर जा सकते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, कुछ भी दैट हेल्प्स यू काम. आप वॉक पे जा सकते हैं, गो टू अ पार्टी विद योर फ्रेंड्स, कुक योर फेवरेट मील, ऑर्डर फ्रॉम योर फेवरेट रेस्टोरेंट, ईट समथिंग नाइस जो आपको पसंद है, गेट योर हेयर कट, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगता है. इफ यू वांट टू स्लीप तो सो जाओ, दैट इज अ सेल्फ केयर एक्टिविटी. एनीथिंग जो आपको अपने लिए करना है, डू दैट. एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन, नेवर टेक इट पर्सनली. वो कोई उल्टी बात भी बोल दे, अपने दिल पे नहीं लगानी है. Okay, so we use this very commonly in therapy. Teenagers are monsters that are very difficult to handle. Teenagers को बहुत difficult होता है handle करना. No matter what they say, हमें उनकी कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए. It should be as simple as that. एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और better yet सर के ऊपर से ले जाओ ऐसी बात. गुस्से में वो जो भी बोले, कभी ध्यान नहीं देना है. And it's never directed at you. It's always them. उनका अपना गुस्सा है, वो आपको नहीं बोलेंगे, किसी और को बोलेंगे, बट इट्स नेवर अबाउट यू एज अ पेरेंट. आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज कर सकते हैं. वेरी टायर्ड, वेरी ओवरवेल्म, लंबी सांस लो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ. मैं एक अच्छी पेरेंट हूँ, मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, मेरे से अच्छा इन बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता है, मैं जो कर सकती थी मैंने सब कर लिया है. जस्ट रिपीट दीज थिंग्स. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई हैव कम अ लॉन्ग वे. यू कैन अपनी छोटी छोटी विन सेलिब्रेट कर सकते हैं. आज मैंने इन लोगों को पूरा 1 घंटा बिना इनके शोर मचाए पढ़ा दिया. मैंने इनको अच्छा पढ़ाया था, दैट्स व्हाई दे गॉट गुड मार्क्स. उन्होंने मेहनत की, ओके, बट यू एज अ पेरेंट ऑल्सो इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो वो चीजें अपने आप को, नेवर फेल टू अप्रिशिएट योर सेल्फ एज अ पेरेंट. Yes, बच्चों की accomplishments are very good. You should always praise them for their accomplishments, but never forget to praise yourself. Because आप अपने आपकी भी तो मेहनत लगी है ना बच्चों की किसी चीज में. एंड आजकल वेरी ऑनेस्टली व्हाट आई हैव बीन नोटिसिंग इज बच्चों के काम पेरेंट्स ज्यादा कर रहे होते हैं, बच्चे नहीं कर रहे होते हैं. सो दोस थिंग्स, ऑलवेज अप्रिशिएट योरसेल्फ. छोटी छोटी चीजों में अपने आप को रेनफोर्समेंट दे सकते हैं. जैसे मैंने बोला, सेल्फ केयर एक्टिविटी जो मर्जी कर सकते हैं. बाय योरसेल्फ अ बैग. Pratha, you were really of great help. And now I need to rush. I'm driving a car. Yes. But amazing seminar. I really, really look up to it. Thank you. So thank you. Thank you so much. Thank you. Hi. She's also learned how to deal with a teenager brother. Now she's going to keep calm herself. She's going to keep very calm because they both fight a lot. So thank you. Thank you very much. Thank you so much. Okay, bye-bye.
Okay, so I'll just quickly wrap this up now because I think it's getting very late. But yes, हमें छोटी छोटी अपनी wins celebrate करनी चाहिए, and we should always go on to seek social support, which is where communities such as Parent Eva come in play. यहाँ पे we are not only providing you a community जहाँ पे everybody, all of the parents, no matter what age group their children belong to, they can come together and उनको एक social support मिल सकता है. Yes, Sonia will definitely share. Actually, sir is recording the PPT right now, so I think he can. And yes, what we can do is कि हम एक सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं पेरेंट एवा पे सब पेरेंट्स को, जहाँ पे दे कैन कम टुगेदर, अपनी प्रॉब्लम्स भी ओपनली शेयर कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली दूसरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम से हम भी सीख सकते हैं, हम टिप्स शेयर कर सकते हैं. एवरीबडी कैन लर्न डिफरेंट थिंग्स. एंड इसके अलावा भी यू कैन कॉन्स्टेंटली स्टे इन टच अपने बच्चों के पेरेंट्स के साथ, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स, how they are dealing with their children, what is happening. I think all of those things parent eva is very actively working towards. और इसी तरीके से आप दूसरी दूसरी जगहों पे भी दूसरे जगह भी सोशल सपोर्ट ढूंढ सकते हैं. Now these are the key takeaways हमने क्या सीखा है आज के सेशन से. First, aggression is not a sign of bad parenting. Never consider yourself a bad parent because your children are showing aggression. Always be calm and respectful. Give them and yourself space. उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करना है एंड सेट क्लियर बाउंड्रीज. हमें उन्हें भी हेल्दी आउटलेट सिखाने चाहिए, खुद भी हेल्दी आउटलेट सीखने चाहिए, ताकि हम भी ठीक से इमोशंस रेगुलेट कर सके एंड आप भी उनसे कर सके ठीक से. वी शुड ऑलवेज टीच आवर किड्स बाय एग्जाम्पल. जिसका मतलब ये है कि हमें हमेशा वो बिहेवियर करना चाहिए जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे सीखें हमसे. हम बदतमीजी करेंगे, हम गुस्सा करेंगे, हमारे बच्चे वही सीखेंगे. ऑलवेज डू व्हाट यू वांट योर किड्स टू डू. हमेशा हमें अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी बॉन्ड और रिलेशनशिप शेयर करने पे फोकस करना चाहिए. एंड वी शुड ऑलवेज फोकस नॉट ओनली ऑन देयर मेंटल हेल्थ बट आवर मेंटल हेल्थ आल्सो, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट. अदरवाइज घर पे प्रॉब्लम रहेगी ही इफ ईदर किसी की भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है. अगेन दीज आर द हार्ड साइड शोज हमें क्या क्या करना चाहिए, एंड द क्रॉस साइड शोज हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए जब एक अग्रेसिव सिचुएशन हो रही है और समथिंग लाइक दैट, एक टेंस सिचुएशन हो रही है. हमें काम रहना चाहिए, फीलिंग्स एक्नॉलेज करनी चाहिए, सेफ स्पेस देनी चाहिए, बाउंड्री सेट करनी चाहिए, हेल्दी आउटलेट्स डेफिनेटली सिखाने चाहिए. और हमेशा कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिससे हम डील नहीं कर सकते हैं, वी नीड टू सीक सपोर्ट, राइट. एंड हमें कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, एंड कभी भी इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एंड अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमारा बच्चा भी गुस्सा करेगा आगे से, तो कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए. वी नीड टू बी वेरी काम. That was all. I think थोड़ा overtime ही हो गया, so I just wrapped it up quickly. So yeah, I think with this I would like to wrap it up. And if there's any questions that you have, any particular problems that you have, I would be great to help. I'll be really happy. And honestly, these are the QR codes for Parent Eva community, जहाँ पे every day we give parenting tips. We share our opinions, and parents can come together and वो अपने opinions share कर सकते हैं, and अपनी problems share कर सकते हैं, anything. So you can join the community, follow us on Instagram, जहाँ पे you'll get more insights into this and be in regular contact with us regarding any upcoming webinars, any sessions, anything for that matter. So if you have any doubts, any queries, you can just ask. This is like the time you can ask कोई भी particular problem or anything you want to talk about or any feedback that you have. Okay, so I take it that you don't have any queries or anything. But I would love if you could follow us on Instagram and join the WhatsApp channel, जहाँ पे we regularly share these things, and we talk about parenting, and we're working towards making parenting a little healthier and a little easier for everybody involved. Hello, ma'am. Hello, Sonia, ma'am. So, thank you for joining in this live webinar. I hope you really liked it. And I have shared the WhatsApp group channel as well, the Parent Evas, where all the parents keep connected with each other along with Radhika ma'am. So, you can freely join the group on our WhatsApp.
channel, right? So feel free to ask any queries, suggest any tips regarding the parenting and all, right? Stay in touch with the Radhika ma'am in the WhatsApp group as well, or you can get on the one-on-one call as well. You can feel free to call her anytime, right? So Yes, thank we you can for like, joining. if yeah, thank you so much. And if you have any particular questions that you would like, you're not comfortable over here, आप अलग से भी बात करना चाहेंगे, anything like that, we can always schedule like one-on-one session जहाँ पे we can talk about anything particular that you may want to. And thank you so much for joining.